Just a minute, बेटे. Yes. So first is what is human capital. ठीक है. तो as we know, just take for example our country. So there is lot of population. Rather there is excessive population. ठीक है. So now this population, this is just nothing else but the accumulation of human beings. When we say there is explosion of population, excess of population, that just in simple words it means this large number of people. ठीक है. Now think for a while, are all these people useful for our country? Think carefully for a while. All the people, including ourselves also, if we include ourselves also, तो we need to think कि 137 crore around population है, तो ये इतने के इतने people, are they useful for the country? तो then in reality we should say all these people are not at all useful. Many are useful, but many are there who are just like, sorry to say, but we need to think economically, but many of the people, they are a kind of burden on the country. Why do we say this? Because those people, they are illiterate people, they are not working, they are unemployed, their mental level is very less, they just remain busy in silly things, they are not at all contributing to the country as well as not to their own family. Rather they behave like their presence is like a burden on their family as well as on the country. Governments have to make arrangements for these type of people, है ना. तो इसका मीनिंग हो गया कि some people, they are not an asset, rather they are a liability on the country. एक बड़ी पर्टिकुलर टर्म इज देयर, वेरी फेमस लाइन, कि पॉपुलेशन इट एक्ट्स एज एन एसिड फॉर ए कंट्री एज वेल एज एन एसिड फॉर ए कंट्री. ठीक है ना. एसिड, ACID, एसिड तेजाब जो होता है, और एसिड, ASSET. तो अब ये कैसे हो सकता है? एसिड कब बनती है पॉपुलेशन? व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन, इट इज वर्किंग, it is doing something positive, it is contributing for the growth of the country, then to that population is like an asset कि कुछ कर रही है. But on the other side, if there is a useless population, illiterate population, dependent population doing nothing, no positive contribution is there, so then in that case that presence of population is like an acid, which इसके होने का फायदा नहीं बल्कि जिसके कहीं लगने का नुकसान ज्यादा हो जाता है ना. तो यही चीज है. तो अब है कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मीनिंग होता है. अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, यू कैन सी योर नेक्स्ट पेज ऑल्सो, 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल आर देयर. कैपिटल का मतलब दोज थिंग्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन. जैसे हमने पहले किया था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, फैक्ट्री, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल. तो सेम थिंग इज हियर, कैपिटल मीन्स दोज थिंग्स, दोज टूल्स विच फर्दर हेल्प इन प्रोडक्शन. तो नाउ दिस कैपिटल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल मीन्स ये अभी जस्ट नाउ आई हैव गिवन द एग्जांपल, फैक्ट्रीज, मशीनरी, इक्विपमेंट, डिफरेंट टाइप्स का सामान, फिजिकल एसेट्स जो होते हैं विच हेल्प इन प्रोडक्शन. ठीक है. और ऑन द अदर साइड ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मीन्स द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ stock of skilled people in the country. Stock मतलब quantity of expert people in the country, quantity of या stock of professionals in the country, stock of educated people in the country. कौन से ऐसे लोग जिनके पास स्किल होता है, जिनके पास नॉलेज है. नॉलेज के बाद होता है स्किल. स्किल का मतलब होता है कि नॉलेज तो है बट उस नॉलेज को हाउ टू यूज दैट नॉलेज प्रैक्टिकली इन द वर्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्किल. आपने या मैंने कुछ पढ़ लिख लिया है और बैठ गए हैं, बैठ के कि हमने पढ़ाई कर ली है, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग नॉलेज, बट हमें एक एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, हमें कुछ पढ़ना नहीं आता प्रॉपरली, हम कुछ काम नहीं कर पाते, तो इसका मतलब वो नॉलेज यूजलेस होगी जब तक हम उसको प्रैक्टिकली लिखने पढ़ने के काम में यूज नहीं करते हैं या आगे कुछ काम नहीं करते हैं ना. तो सेम वे स्किल होता है व्हेन वी प्रैक्टिकली यूज अवर नॉलेज इन सम वर्क. So when in any country there is large stock of such type of people who are experts, who are well educated, who are knowledgeable as well, who are skilled, who are positively contributing. तो कौन करता है positively contribute? Those who are professionals, जो किसी ना किसी काम में लगे होते हैं. सिर्फ घर पे हम बैठ के खाना पीना ही नहीं खाते, खा लिया पी लिया सो लिया, वो नहीं. We are doing some work. कौन सा work which is productive? For whom?
फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द फैमिली, है ना। तो ये सारे काम जब हम करते हैं किसी कंट्री के पास, व्हेन देयर इज अ स्टॉक ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल, those who have education, those who have skills, those who are professionals, those who have knowledge of something, and those who have ability, potential as well as ability to do something. So when such type of people exist in a country, तो then we say कि भाई there is human capital. एक सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बॉडी की शेप में होना ही ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन तो है नो डाउट, बट वो कैपिटल कब बनता है, व्हेन ही हैज द दिस प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स इन हिज पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो एक जैसे एक एनिमल भी होता है, एक जानवर भी होता है, अब कहने को तो वो भी है, ठीक है, उसमें भी जान है, इट इज़ ऑल्सो ए लिविंग बीइंग, बट वो क्या है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उसमें, मतलब उसमें दिमाग नहीं है, उसको सोसाइटी के भले के लिए उसको नहीं यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स दोज हु आर विदाउट दीज करेक्टरिस्टिक्स, दे आर जस्ट लाइक ए बर्डन, दे आर जस्ट लाइक एन एनिमल विच इज़ यूजलेस फॉर द सोसाइटी. And human capital means stock of quantity of large number of human beings who are embodied. Embodied मतलब जिनके अंदर these qualities are present. Which qualities? Education, skill, ability, knowledge, information, professionalism, all these qualities exist. तो then we say there is human capital, ठीक है। अब है दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल. एज आई टोल्ड कि फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, all these things no doubt they help a lot in the production, but these are non living things. मतलब these things cannot produce anything on their own. आप यू थिंक फॉर ए वाइल, एक मशीन है, मशीन के ऊपर जब तक कोई पर्सन उसको ऑपरेट नहीं करेगा, उसको हैंडल नहीं करेगा, उसके ऊपर कुछ काम करेगा नहीं, उसको कुछ जो भी उसका चलाना है वो नहीं करेगा, तो कैसे वो मशीन काम करेगी? हाउ द मशीन विल डिसाइड कि कितनी प्रोडक्शन करनी है? वो नहीं सोच सकती. मशीन एक नॉन लिविंग चीज़ है जिसमें जितना रॉ मटेरियल डाल दो उतना बना के सामने रख देगी, है ना. बट हु इज़ देयर टू डिसाइड कि हाउ मच रॉ मटेरियल इज़ टू बी अप्लाइड, हाउ मच क्वांटिटी इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, इन विच क्वांटिटी थिंग्स आर टू बी मेड. ये सारे काम जो होते हैं दे आर डन बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है. तो फिजिकल कैपिटल जो है दैट इज ए काइंड ऑफ नॉन लिविंग कैपिटल. इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, बट ह्यूमन कैपिटल इज ए लिविंग कैपिटल. हम सारे लोग ह्यूमन जो कैपिटल है, वी आर लिविंग बींग्स, वी कैन थिंक, वी कैन डिसाइड, वी कैन टेक राइट डिसीजन, वी हैव दिस एबिलिटी टू डिसाइड थिंग्स. बट ये फिजिकली जो मशीन्स होती हैं या कैपिटल होती है, इट कैन नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन, ठीक है. सेकेंड होता है कि जो फिजिकल कैपिटल है, इट्स प्रेजेंस इज ए very careful decision of its owner. I am saying presence or existence of physical capital या ownership of physical capital is a careful decision of its owner. मतलब ये, जैसे मान लो मैं तनवीर को देख रही हूँ, तो तनवीर चाहता है कि मैं एक बाइक ले लूँ, तो बड़ा इसने सोच समझ के पहले डिसाइड किया कि हाँ मैंने ये वाली बाइक लेनी है, फिर इसने ले लिया, ठीक है. अब वो बाइक इसका एसेट बन गया, इसकी एक नॉन लिविंग एक फिजिकल कैपिटल बन गई. तो इसने सोचा है, अपने आप डिसाइड किया है, देन ही हैज परचेज्ड ए बाइक, ठीक. तो इसका मतलब बाइक की ओनरशिप होना किसका डिसीजन है? इट इज़ द डिसीजन ऑफ तनवीर या कोई भी पर्सन हो, ठीक है. तो मशीन को रखना है कि नहीं रखना है, लेना है या नहीं लेना है, इसको ओन करना है या नहीं करना है, कौन डिसाइड करता है? जो इसका ओनर होता है, जो इसका मालिक होता है. अब ये तनवीर कहे कि नहीं मैंने नई बाइक लेनी, तो नोबडी कैन कंपेल हिम, उसकी मर्जी है ले या ना ले, है ना. तो ऐसे ही मशीनों को ओन करना, इक्विपमेंट को ओन करना, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द ओनर कि वो मशीनें लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, ठीक है. तो ऑन द अदर साइड जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो क्या करता है, उसमें व्हेन वी इन्वेस्ट मनी, तो देन इट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस मोर इनकम इन फ्यूचर, ठीक. अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में आती हूँ. तो ये सारे पेज के ऊपर ना ये मैंने जस्ट ऐसे ही बताया आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इस पेज के ऊपर यू राइट डाउन ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग, प्लीज नोट डाउन. ये मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, रीडिंग, ठीक है. अब है कि व्हाई डू वी नीड ह्यूमन कैपिटल, हमें इसकी क्यों, हमारा मेन स्ट्रेस चैप्टर इज दिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा स्ट्रेस रखना है. तो ह्यूमन कैपिटल क्यों रिक्वायर्ड होती है? ह्यूमन कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट पीपल, ठीक है ना. कॉम्पिटेंट पीपल का मतलब जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी होती है. कॉम्पिटेंसी मीन्स एबिलिटी होती है. सोच के देखिए फॉर 1 मिनट, पूरी सोसाइटी में सारे इलिटरेट लोग हैं,
कोई पढ़े लिखे ही है ही नहीं, तो उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी. नो डाउट कॉम्पिटेंसी इन द सेंस खाना पीना सोना जागना ये तो कोई भी कर लेता है, एनिमल्स भी करते हैं, बट कॉम्पिटेंसी इन द सेंस कि आगे क्या राइटफुल डिसीजन लेना है, या कैसे अपना कंट्री की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या कैसे अपनी इनकम को जनरेट करना है, ये वाली कोई खास कॉम्पिटेंस नहीं होती है. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि वी हैव टू इन्वेस्ट मनी टू क्रिएट कॉम्पिटेंट ह्यूमन बींग्स. ठीक, तो उनको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए वी नीड टू लर्न ए लॉट, वी नीड टू एजुकेट अवर सेल्स, वी नीड टू गेन नॉलेज. तो ये सारे काम हम सारे ही लोग करते हैं इन वन और द अदर फॉर्म. सो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, अब है कि ह्यूमन कैपिटल का फ़ायदा क्या है. जैसे मैंने बोला ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्टॉक ऑफ स्किल्ड पीपल. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फेमस एग्जांपल जैसे हम कह रहे थे, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, बैंकर्स हैं, या प्रोफेशनल्स हैं. प्रोफेशनल मीन्स कोई भी काम करने वाले लोग जो है. नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दीज पीपल फॉर द सोसाइटी. क्या यूटिलिटी है इनकी. दे जनरेट इनकम, they do something fruitful not only for themselves but for their family as well as for the society. आप सोचिए, आप सारे ही लोग, आपके पेरेंट्स, हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपना भी फायदा कर रहे हैं, दूसरों का भी फायदा कर रहे हैं. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वी आर प्रोड्यूसिंग, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बन क्या रहा है, यू पीपल आर बिकमिंग, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेज ऑफ योर व्हाट कैन वी से अटेनिंग कॉम्पिटेंस. पढ़ाई कर करके आप अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाओगे एंड वी पीपल आर जस्ट बिकमिंग ए सोर्स ऑफ दैट, उसका एक हिस्सा बन रहे हैं, है ना. तो दैट मीन्स कि जो ह्यूमन कैपिटल का प्रोसेस है ये हेल्प करता है हमें अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. ठीक, अब है कि नेक्स्ट एक टर्म आती है, आगे डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस याद नहीं करना, यू कैन जस्ट रीड इट, वट एवर आई हैव टोल्ड उसी को पॉइंट्स बना के दिया है, ओनली रीडिंग. ठीक, तो वो पे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ development of abilities and skills of people. Process of development of skills and abilities among the people of the country. मतलब वो process, वो journey through which we are making this human capital. वो रास्ता जिसके ऊपर चल के हम डॉक्टर बन रहे हैं, हम प्रोफेशनल बन रहे हैं, हम कोई भी अपनी लाइफ का कोई भी काम करने के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, वो जो प्रोसेस है, process of making something, that is called human capital formation. Human capital हो गया stock of professionals, stock of well educated knowledgeable skilled people, and process formation word का meaning हो गया to make to proceed towards on that path. जैसे आपको याद है लास्ट ईयर एक आपने टॉपिक किया था टेबुलेशन, तो उसमें क्या बोला था, व्हाट इज टेबल एंड व्हाट इज टेबुलेशन. तो टेबल मीन्स दिस प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, और टेबुलेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दोज टेबल्स. तो सेम वे ह्यूमन कैपिटल मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ वेल एजुकेटेड स्किल्ड पीपल, एबल पीपल, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट ह्यूमन कैपिटल, उसको बनाना. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी यू आर स्टडिंग, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एजुकेशन, तो आप क्या, आपकी क्या हो रही है, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ह्यूमन कैपिटल. अभी बने नहीं है, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, आपने एक प्रॉपर अपना जो भी आपका स्किल है, जिस भी फील्ड में आपने जाना है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड दैट प्रोसेस, रादर यू आर ऑन द पाथ ऑफ दैट प्रोसेस. तो दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल इज बीइंग फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ यू स्टूडेंट्स. आपके तौर पे, आपके रूप में वो हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक, और आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या है, अब हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, है ना. नाउ वी आर मेकिंग यूज ऑफ अवर दैट स्किल. अब हमने अपनी जो भी नॉलेज इकट्ठी की थी, नाउ वी आर मेकिंग प्रैक्टिकल यूज ऑफ दैट एंड वी आर अर्निंग मनी ऑल्सो. दैट मीन्स हम लोग बन चुके हैं ह्यूमन कैपिटल, और आप अभी क्या है, एक सिर्फ टाइम का गैप है, मतलब एज वाइज यही है ना, ईयर्स का ही गैप है. तो आप क्या है, आप अभी बन रहे हैं, 2-4 साल के बाद आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, यू विल ऑल्सो बिकम प्रोफेशनल, तो आप भी ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे. तो अभी यू आर ऑन द पाथ ऑफ दैट डेवलपमेंट. ठीक, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ह्यूमन कैपिटल in the form of professional people, well educated, knowledgeable, skilled, able, competent people who contribute for the country. I hope this is clear. ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब प्रोसेस,
और ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिंपल एक दो वर्ड्स में कहना हो, स्किल्ड पीपल। अब स्किल्ड में सारा कुछ ही आ जाता है, ठीक। अब है नेक्स्ट, एज यू कैन सी, अब है कि ये अगर ह्यूमन कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट है, इट इज हैविंग सो मच इम्पॉर्टेंस, तो देन हाउ कैन वी फॉर्म दिस ह्यूमन कैपिटल, इसको बनाया कैसे जाए। और द सेम थिंग इज ऑल्सो नोन एज, यू मे राइट ऑन योर बुक ऑल्सो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि हम क्या करें कि ह्यूमन कैपिटल बन जाए, what should we do, ठीक है। तो सेम थिंग इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और हाउ कैन वी फॉर्म ह्यूमन कैपिटल, ठीक, कैसे बना सकते हैं। तो फर्दर 5 पॉइंट्स आर देयर which with the help of which we can form capital. First point is expenditure on education, ठीक। अब आप सोचिए, now you people are studying in school, इस साल के बाद then you will go to college, you may go, some of you may go to university also for the completion of your work study, ठीक है। now right now what is being done by you and your parents, you are spending money, है ना, फ्री में तो नहीं पढ़ाई हो रही है, लॉट ऑफ मनी इज टू बी स्पेंट। तो हम लोग क्या, हम लोग का मतलब आप लोग सारे क्या कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग मनी। तो वो जो स्पेंडिंग मनी है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, that means कि education we don't get in free, we have to spend some expenditure, we have to incur some expenditure, तो only with the help of which in the present modern world, पहले का समय नहीं है कि ऋषि मुनि पढ़ा देते थे फ्री में, जाके गुरुजी के पास पढ़ लो, अब तो नहीं ना वैसे होता, अब तो फॉर्मली वी हैव टू गेट एडमिशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो वी हैव टू स्पेंड मनी ऑल्सो, ठीक। अब है कि क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी स्पेंड मनी, क्या ज़रूरत पड़ी है इतना पैसा खर्च करने की। तो वो ज़रूरत इस करके है कि अगर हम लोग, इफ़ वी डोंट गेट एजुकेशन देन व्हाट विल हैपन, वी विल रिमेन अनएजुकेटेड। जब हम अनएजुकेटेड रहेंगे तो इन द मॉडर्न सोसाइटी, इन द प्रेजेंट सोसाइटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। एक अनपढ़ आदमी रह के हम लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं। सर्वाइवल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कोई हमें मार देगा, जिंदा नहीं रहेंगे, वो नहीं। सर्वाइवल का मतलब हम क्या कमाएंगे, हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, इफ़ वी डोंट हैव एनी नॉलेज, इफ़ वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्किल, कुछ भी करना ही नहीं आता है, तो हम क्या कमाएंगे। सारी उम्र पेरेंट्स के ऊपर थोड़ी डिपेंड रहेंगे, अपने आप भी तो कोई काम करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एजुकेशन इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज अवर एबिलिटी टू अर्न मनी। हम पढ़ाई इस करके करते हैं कि हमारे अंदर वो एबिलिटी आए। क्या एबिलिटी, एबिलिटी टू अर्न मनी, ठीक है। अब है कि जब हम अर्न करेंगे तो दैट मीन्स वी विल बिकम इंडिपेंडेंट, अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरों के ऊपर बर्डन नहीं रहेंगे। वी विल नॉट बिहेव लाइक ए पैरासाइट ऑन द सोसाइटी। पैरासाइट होता है जो दूसरों का ही खून पीता है, तो दूसरों का खून पीने का ये एक मुहावरा है। दूसरों का खून पीने का मतलब कि हमेशा ही सारी उम्र ही दूसरों पे डिपेंड रहना, है ना। तो व्हेन वी गेट एजुकेशन, तो देन विद द हेल्प ऑफ दैट एजुकेशन वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। आप काम करने की हमें एबिलिटी आती है, ताकत आती है, ठीक है। तो अब है कि जैसे कोई भी लोग होते हैं, कोई भी जैसे फर्म्स होती हैं या कंपनीज होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो एज दे स्पेंड मनी ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीनरी, दे स्पेंड मनी फॉर परचेजिंग मशीनरी इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन फिजिकल कैपिटल। सिमिलरली इन द सोसाइटी पीपल मेक इन्वेस्टमेंट ऑन द इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। हम लोग ये, आप जो पैसे खर्च कर रहे हो, यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। अभी आपके पेरेंट्स आपके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर वो खर्च ही करते जा रहे हैं, नर्सरी से लेके, प्री नर्सरी से लेके अभी तक, राइट नाउ, आगे भी 2-4 साल अभी दे विल कीप ऑन स्पेंडिंग, ठीक। तो अब सोच के देखो, इतनी एक जस्ट ऑन एन एवरेज इन इंडिया, हमारे कंट्री के सिनेरियो में 20-22-23 साल तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। उसके बाद ही अपना किसी काम में हमारा पूरा ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम अपने किसी प्रैक्टिकली काम में जाते हैं। तो इसका मतलब 23 ईयर्स तक या 22 ईयर्स तक जितना पैसा हमने खर्च किया है, उसके बाद फिर हम कोई काम ही ना करें, खाली बैठ जाएं, दैट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ जस्ट गॉन इनटू वेन। वेन मतलब फालतू खर्च हो गई, किया कुछ है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो कर दी। ऐसे सोचो, कोई आदमी है, ही हैज़ परचेज्ड ए मशीन, lakhs of rupees have been spent on the purchase, लाके उसने, he has installed in his factory, but now he is not doing anything with the help of that machine, उसको चला ही नहीं रहा है। तो कोई भी आदमी उसको क्या बोलेगा, भी he is a foolish man, इतना पैसा खर्च कर दिया, अब मशीन को यूज़ करो, why are you not producing anything, है ना। तो सेम थिंग इज हियर कि अगर हम इतना खर्च कर रहे हैं तो देन वी हैव टू डू द वर्क ऑल्सो, ठीक। अब होता क्या है, व्हेन वी स्पेंड ए लॉट, तो देन वी एक्सपेक्ट, जितनी बढ़िया पढ़ाई करते हैं, जितना टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देन वी एक्सपेक्ट कि इन फ्यूचर वी विल गेट रिवॉर्ड फॉर दिस, फॉर अवर गेन ऑफ दिस नॉलेज, फॉर अवर एजुकेशन। हाउ विल वी गेट gains?
we will get gains in the form of income, in the form of salary. जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, टीचर्स का एग्जांपल दूं, तो अब हमने अपने पहले के लाइफ में पढ़ने के टाइम पे इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई कर ली, दैट वाज अवर इन्वेस्टमेंट. अवर तो नहीं कहेंगे, तब तो पेरेंट्स ही कर रहे थे ना, आप थोड़ी कुछ कर रहे थे. तो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी. अब क्या कर रहे हैं, अब नाउ वी आर मेकिंग यूज ऑफ दैट नॉलेज एंड स्किल, नाउ वी आर अर्निंग मनी. ठीक, अब नाउ वी आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट विच वॉज मेड इन अस बाय अवर पेरेंट्स इन द प्रीवियस टाइम. I hope you are getting my point. Similarly, right now, your parents are investing money on your education in the hope that in future, with that education and skill, you will also be able to earn a good or a handsome salary or income. या जो भी आप business भी करो, तो भी जो भी आपको profit है, मतलब आप कमा सकेंगे. ठीक, तो investment in education is done only in the hope of this factor only. इसी चीज को ध्यान में रख के करते हैं कि in future we will get benefits. फ्री में नहीं जाएगी, फालतू में नहीं जाएगी पढ़ाई का खर्च. उसको हम जब यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल काम में तो हमें इनकम होगी, एंड दैट इनकम विल बी मच मोर देन द इन्वेस्टमेंट विच वाज मेड. सोच के देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. आप मतलब हर एक अपना अपना हो सकता है. नर्सरी से लेके आपकी जब तक आपकी पढ़ाई होती है, जितने भी लैक्स ऑफ रुपीस खर्च हुए हैं उसको टोटल कर लें, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, आपकी बुक्स, आपकी स्कूल फी, एडमिशन, आपके स्कूल के आने जाने का अरेंजमेंट, ए टू जेड सारा खर्चा, जितना भी आपका खर्चा होगा. उसके बाद जब आप अपनी लाइफ में काम करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज ए प्रोफेशनल, तो आपका वो सारा खर्च आपके जॉब के फर्स्ट ईयर में कंप्लीट नहीं होगा. आपको नई नई जॉब मिली है, नौकरी मिली है, तो आप कहें कि मैंने कि जी 15 लाख रुपए पढ़ाई पे खर्च किए थे तो पहली सैलरी में मेरा खर्च पूरा हो जाए, वो नहीं होगा. यू नीड टू वर्क फॉर फ्यू ईयर्स. 4-5 साल, आप डिपेंड करता है हाउ मच सैलरी यू गेट. तो 4-5 साल आप काम करते हो, 10 साल काम करते हो, तब जाके आपकी पढ़ाई का खर्चा वो इक्वल होगा. इन द कंडीशन कि आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, जितना आपने पैसा खर्च किया, इट विल टेक सम टाइम टू कवर अप दैट कॉस्ट. मान लो आपको 7-8 साल लग गए आपकी पढ़ाई का खर्च कंप्लीट करते करते अपनी सैलरी से. ठीक, अब क्या होगा उन 8 ईयर्स के बाद, नाउ वट एवर इनकम यू आर गेटिंग, दैट इज योर प्योर प्रॉफिट. प्योर, गेटिंग माई पॉइंट, प्योर मतलब शुद्ध प्रॉफिट है आपका. अब आपके खर्चे, पढ़ाई का खर्चा पूरा हो गया, इसका मतलब अब आपको टोटली बेनिफिट ही मिल रहे हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी. तो इसका मीनिंग है कि एजुकेशन के ऊपर वट एवर मनी वी इन्वेस्ट, इन फ्यूचर वी गेट ह्यूज रिटर्न्स ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. ह्यूज रिटर्न्स. हम सबके घर वालों ने जितना भी खर्चा किया है, अब हम उनसे कई गुना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. तो दैट मीन्स वी आर रीपिंग, वी आर कटिंग, वी आर गेटिंग huge profit on that investment. That is why, तभी आपने कभी सोचा है why parents always insist पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, काम में आएगा. इसीलिए कहते हैं कि आपको फ्यूचर में हेल्प होगी, आपको इनकम होगी, इस बात से आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं काम में आएगी. ठीक है जी. अब है कि एजुकेशन के अदरवाइज क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्हाट आर द दिस बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन टू द सोसाइटी और फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसे जैसे यहाँ लिखा नेक्स्ट पेज के ऊपर, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना. तो सिंपली यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट द वर्ड एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन. लिख लो ऊपर, एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, कि इन जनरल क्या इसके फायदे होते हैं. ठीक है, तो अब अपने आप वैसे ही सोच के बता दीजिए, ये तो हम खुद से भी बना सकते हैं. तो एजुकेशन क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्हांसेस अवर थिंकिंग एबिलिटी. यही होता है. नॉर्मली सोच के देखिए, जस्ट जरूरी नहीं हमने इकोनॉमिक्स के बच्चे बन के ही सोचना है, वैसे ही सोच के देखो क्या फायदा होता है. व्हाट इज द बेनिफिट, कि जो एजुकेशन है पढ़ लिख के अवर मेंटल होराइजन एक्सपैंड्स. मेंटल होराइजन का मीनिंग होता है सोचने समझने की एबिलिटी. ऑब्वियसली एक पढ़े लिखे आदमी की एबिलिटी इज मच मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन. इलिटरेट भी सोच सकता है, ऐसा नहीं कि उसको सोचना नहीं आता है, बट जब हम थोड़ा पढ़ते लिखते हैं तो हमारा थोड़ा सा वो शार्पनेस आती है, माइंड में सोचने की ताकत ज़्यादा आती है. वी कैन थिंक कि क्या चीज़ सही है, क्या बुरी है, हमारे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. कंपैरेटिव एनालिसिस वी कैन वेरी इजीली मेक, we can do those analysis. ठीक है, तो our mental ability increases, mental horizon expands, thinking ability expands, then we come in the position to earn more income. ऑब्वियसली पढ़ाई करके ज़्यादा कमा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके. वी कैन अर्न, वी कैन जनरेट मोर इनकम, एंड देन वी कैन मेक विद दैट मोर इनकम, वी कैन अपलिफ्ट अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो. ज़्यादा पैसे हैं तो अपने रहन सहन को ज़्यादा बढ़िया चीज़ें लेके, मटीरियलिस्टिक चीज़ें लेके हम उसको ठीक कर सकते हैं.
अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वट एवर वी आर टॉकिंग हेयर इन दिस लेक्चर वो इकोनॉमिक्स की टर्म में, फिजिकल टर्म्स में कह रहे हैं, बट अदरवाइज ये नहीं कोई होता है कि ज़्यादा चीज़ें लेके हमें कोई खुशी मिलती है या उसी से हैप्पीनेस कंटेंटमेंट आती है, वो चीज़ नहीं है. बट यहाँ पे सिंस वी आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट ओनली फिजिकल टर्म्स में, तो वी कैन अप्रेज, वी कैन अपलिफ्ट अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग by making use of better types of things in our life. Good quality products we can purchase with the help of our increased income, and that increased income can be taken with the help of, can be enjoyed with the help of our better education. ठीक है. और क्या हो सकता है? We get a reputed place in the society. Reputation बढ़ती है, आसपास के लोग भी तारीफ करते हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े वेल एजुकेटेड फैमिली है, बड़े सियाने लोग हैं, है ना, तो एक रेपुटेशन भी बनती है. तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं. देन इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू हैव द एबिलिटी टू इनोवेट. एक आता है ना स्टिमुलेट्स इनोवेशन, लिखा हुआ है. स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट होता है टू एनकरेज, इंस्पायर्स. इनोवेशन होता है नए नए काम करना, नई नई चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी लेना या उसको खोजना, उसके बारे में पता लगाना, कोई नई चीज़ का पता लगाना. तो ये एजुकेशन जब होती है तो देन वी ऑटोमेटिकली वी ट्राई टू टेस्ट अवर हैंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स. कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं. स्पेशली दोज पीपल हु हैव ए प्रैक्टिकल टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिनको कुछ ना कुछ करने की आदत होती है. कभी आपने नोटिस किया हो, आपने क्या किया होगा, आप भी जब छोटे थे, हम सारे जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, कोई टॉयज होते हैं तो आपने देखा होगा बच्चे पहले नया नया टॉय ला के दो, पहले उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसको खोल के पहले पूरा देखते हैं अभी अंदर क्या है, सारा कुछ उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं, है ना. उसके बाद फिर उसको देन दे ट्राई टू कंबाइन ऑल द पार्ट्स, असेंबल ऑल द पार्ट्स. तो वो क्या होता है, एक तरह से वो एक ह्यूमन माइंड की एक बिगनिंग है कि एक एक इंटरेस्ट है कि इसके अंदर क्या है, फिर हम उसको जोड़ते हैं, बच्चा उसको जोड़ता है टॉय को. इसका मतलब वो कोशिश करता है कि फिर उसको पहले वाली पोजीशन में लेके आया जाए. वट इज दैट एबिलिटी? वो एबिलिटी कहलाती है इनोवेट करना, डिजायर टू नो समथिंग मोर, कि इसके अंदर क्या है. ठीक है. तो ऐसे ही सेम एबिलिटी व्हेन वी गेट प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर दिस एजुकेशन, तो हमारी वो जो एबिलिटी है नई नई चीज़ों को खोजने की, उसके बारे में टू गेट नॉलेज, वो भी इम्प्रूव करती है. कोई ना कोई आप देखते हो, आप साइंस में जब आप 10th में थे, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, तो आप नई नई चीज़ें सोचते हैं. तो ये सब कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ओनली. ठीक है. तो देन वी डिवेलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड अस. हम उनके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होती है कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या उनका मेंटल लेवल है. हम दूसरों को भी जज करते हैं, तो दूसरों को जज तभी कर सकते हैं अगर अपने अंदर भी एबिलिटी हो. तो एक आदमी दूसरे को तभी जज करेगा ना अगर वो भी, आप भी पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि हाँ भी अब ये आदमी अभी गुस्से में है, इससे बात ना करे, या ये अभी खुश है तो बात कर ले. तो जजमेंट भी एक तरह से हम करते हैं. तो ये मतलब कहने का मतलब है कि ऑल अवर विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ट्रेट मतलब क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, दे गेट शार्पन्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. हमें माहौल पता लगता है ना, थोड़ा सा कोई गुस्से में है, थोड़ा हैवी सा माहौल है, चुप रहो, अभी अभी एंगर में है, अभी ना बात करो. तो मतलब हमें समझ आती है, अकल आती है हमें कि क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो दीज आर जस्ट द बेनिफिट्स. बट यहाँ पे एक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर. मैंने आई हैव डिवोटेड लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस वेरी पॉइंट ओनली बिकॉज दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. एक चीज़ हमें जो सबको याद रखनी चाहिए कि जो एजुकेशन है, इट कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. अभी आप लोग जो कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन. प्रॉपरली वी गेट एडमिशन, देन वी गो, देन वी लर्न देयर, टीचिंग लर्निंग होती है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है. बट इट डज नॉट मीन कि वट एवर यू आर लर्निंग या वी हैव लर्न इन अवर लाइफ, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ओनली दिस फॉर्मल एजुकेशन. दिस इज टोटली रॉन्ग. वी पीपल, ह्यूमन बींग्स की एक नेचर होती है, वी लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो. वी हैव इनफॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो. इनफॉर्मल क्या है? घरों पे आप देखते हो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, रिलेटिव्स को, अपने आसपास, अपने गली में, मोहल्ले में, अपनी लोकेलिटी में लोगों के साथ हम टच में आते हैं, मतलब कांटेक्ट में आते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, है ना. घर पे एल्डर्स आते हैं, कोई बाहर कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो आपके पेरेंट्स उनके पैर टच करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आप उनको ये अब स्कूल में नहीं आपको नर्सरी क्लास में बताया भी बेटे प्रणाम करना है, आपने देख के उनको सीखा, घर में जो हो रहा है उसको देख के सीखा, है ना. तो मंदिर में जाते हैं और गुरुद्वारा में जाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है,
कैसे चुप करके बैठना है वहाँ पे, तो ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा होता, पढ़ाया हो जाता, ये हम एक दूसरे को देख देख के सीखते हैं, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन बींग इज द आउटकम ऑफ हिज और हर फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। No doubt, school college की formal education plays very important role, but along with that, whatever we see in the society, whatever we learn from the people in the society, that also plays equally important role. उसका भी बहुत importance है, ठीक है। तभी आपको कहते हैं ना, जब आप क्लास प्रॉपरली लगी होती है तो आपको कहते हैं कि बेटे ऐसे विश करो, बड़ों के सामने ऐसे बोलो, ऐसे चलो। तो उसका मतलब क्या है, वी ट्राई टू प्रिपेयर यू पीपल फॉर मूविंग इन सोसाइटी व्हेन यू विल स्टार्ट योर ओन वर्क। तो आप एटिकेट्स सीखो, आप मैनर्स सीखो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टू मेक यू ए बेटर पर्सन, ताकि आने वाली लाइफ में आपको बाहर जाके पब्लिकली व्हेन यू सर्व इन द सोसाइटी काम करते हैं तो ये चीज़ें भी इक्वली मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद है, एक टर्म होती है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं वैसे ही समझा रही हूँ, ठीक है। एक होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ट्रेनिंग आप देखो, कभी आपने ध्यान किया हो, सर्कस में एनिमल्स होते हैं, लायन होता है जी, एलिफेंट होता है, कोई और जानवर होते हैं, तो उनको भी ट्रेंड कर लिया जाता है। हंटर दिखा के वो सर्कस वाला पर्सन उनको भी ट्रेंड कर लेता है, अब ये सर्कल में घूमो, ऐसे मुंह खोलो, ये करो, वो करो। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रेनिंग तो एक बेजुबान एनिमल को भी दी जा सकती है, तो ट्रेनिंग तो ह्यूमन बींग्स को भी दी जा सकती है, ठीक है। डॉक्टर्स जो होते हैं, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो लास्ट वाले 1 और 2 ईयर्स उनकी अप्रेंटिसशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, है ना, हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग लेते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि भाई हम सीखते हैं, इंस्ट्रक्शंस ले लेके कोई दूसरा हमें बताता जाता है, हम ट्रेंड होते जाते हैं, सीखते जाते हैं। बट दैट इज़ नॉट द एजुकेशन, दैट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। भी कोई चीज़ें हम लोग हाथ से करके, आप खुद करके, वी लर्न हाउ टू डू देम, हाउ टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज़, हम उनको सीख लेते हैं। बट दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन। एजुकेशन होता है ना केवल सिर्फ फिजिकल तौर पे कोई काम करना सीखना, बल्कि मेंटल लेवल के ऊपर भी उस चीज़ के बारे में सोचना, समझना, उसके बारे में डिसाइड करना, ठीक है। अब किसी के हाथ में, आप अभी नया नया डॉक्टर बन रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके हाथ में नाइफ दे दो, उसको ये समझाओ ना भी नाइफ को यूज़ कैसे करना, वो तो अगले की इंटेस्टाइन निकाल के बाहर हाथ में पकड़ा देगा, लो जी भी ऑपरेशन कर दिया, पता ही नहीं, अभी तक उसको सिखाया नहीं। दैट मीन्स कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स होना, ट्रेनिंग होना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ब्लाइंडली, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। उस ट्रेनिंग के साथ साथ हमें वी हैव टू थिंक, वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ अवर माइंड कि क्या करना है, कैसे करना है। दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशन, ठीक। तो आई हैव टोल्ड यू कि एजुकेशन कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ट्रेनिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड ओवरऑल एजुकेशन, ठीक है। उसका सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी एजुकेशन वो नहीं होती है, ठीक। एजुकेशन का मीनिंग होता है द नॉलेज विच वी हैव गेन्ड, टू मेक यूज ऑफ दैट गेन्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल फॉर्म फॉर द बेटरमेंट। कोई भी हो, बेटरमेंट सभी की, किसी के भले के लिए उस चीज़ को फायदे के लिए यूज करना, दैट इज एजुकेशन, ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो क्या किया हमने, इसमें मेन पॉइंट क्या है, बेनिफिट्स आपने पढ़ने हैं। देन यू विल से कि भाई इन्वेस्टमेंट विच हैज बीन डन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, दैट गिव्स अस ह्यूज प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ अवर इनकम और सैलरी विच वी अर्न इन अवर लेटर लाइफ, एंड दैट गेन इज मच मोर देन द कॉस्ट विच वी हैव इनकर्ड, ठीक। तो सेकंड पॉइंट जो है, दैट वी विल डू टुमारो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है जी। आज आपने इतना ही पढ़ना है और इसको कोशिश कर लेना है कि याद भी कर लें। वेरी सिंपल पॉइंट इज देयर। सो इट्स ऑलमोस्ट ओवर, मीटिंग कभी भी खत्म हो जाएगी, सो आई एम गोइंग टू क्लोज इट। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सुखजीत मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग।